Hello students, welcome back in online teaching class 11th standard NCERT syllabus biology chapter number 3 plant kingdom. I explained up to the classification of plants, the algae, the phylum bryophytes, the phylum pteridophytes. Let's we start today's gymnosperm. Plant kingdom is divided in mainly 5 phylum and gymnosperm is the fourth phylum. According to its development, cellular development, it is in fourth number of category of plant kingdom. Why it is fourth category? Because it is higher than algae, higher than bryophyte, higher than pteridophyte. Why? Because it has a well developed root system, well developed stem system, well developed leaves and well developed fruits. But it does not have flowers, so these are called non flowering plant also. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म जो है यह प्लांट का जिसके अंदर हाईएस्ट टोलेस्ट ट्रीज जो होते हैं वहाँ से लेकर के स्मॉलेस्ट ट्रीज के अंडर जो हर्ब श्रब्स सभी तरह के जो ट्रीज होते हैं जिनकी वेल डेवलप रूट होती है, वेल डेवलप स्टेम है, वेल डेवलप लीव्स हैं और लीव्स के भी डिफ्रेंशिएट क्लासिफिकेशंस और काइंड्स होते हैं। तो वो सब के सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये सभी के सभी फ्रूट्स को तो बियर्स करते हैं, सीड्स भी बियर करते हैं और अपना जो रिप्रोडक्शंस होता है वह दोनों टाइप का जो मेनली जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है हायर प्लांट्स के अंदर वह प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन नॉन फ्लावरिंग होते हैं। इसमें से एक भी ट्री या एक भी इस तरह का नहीं होता है प्लांट कि जिसके अंदर फ्लावर्स बियर्स होते हैं। तो ऑल नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर इंक्लूड इन जिम्नोस्पर्म and gymnosperms are have the largest structures up to the smallest structure of plant, and shrubs, herbs, all trees are included in it. The tallest tree, redwood, we say to this sequoia, is the include in the gymnosperm plant, and gymnosperm trees has well developed root system. So in its roots the fungal associations we call this mycorrhiza also find in it, and it is found in pinus tree and cycas tree. Okay, pinus and cycas are the most important trees of the gymnosperm plant, and the cycas branched. Cycas is unbranched and pinus is branched. When we look to both trees, both are tall and look same to same, but what is the difference? That stems are unbranched of cycas and stems are branched of pinus. Okay, and the leaves of gymnosperm are well adapted to withstand extreme temperature, humidity and wind. Means most of gymnosperm plant also are found in hilly region area. Why? Because it need the adaptable conditions like this humidity, temperature, low temperature, and conifers and needle-like leaves structures are found in the gymnosperm plants, and most of their adaptive conditions is found in hilly region. Okay, students. Now the gymnosperm are heterosporous. Heterosporous means both gametes are found in its, and which are small, these gametes are called microsporophyll, and these are large, these are megasporangia. And microsporangia produce pollen grain, and megasporangia is female strawberry and it produce ovule. Okay, so main higher sexual reproductions is found in gymnosperm. हम कितनी बार जिम्नोस्पर्म प्लांट देखते हैं, हमारे लैब में भी है, बायो लैब में, तो उसका एक कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि डायरेक्ट ये जब इसकी लीव्स की ब्रांचिंग होती है तो लीव से प्रोड्यूस होता है नोड और इंटरनोड, जहाँ से ब्रांचिंग होकर के क्या फ्लावर्स निकलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस होता है। बट यहाँ पे फ्लावर जो होता है यहाँ डिसअपियर हो जाता है जिम्नोस्पर्म में, और उसकी जगह पर यहाँ पर प्रोड्यूस होता है स्पोरेंजिया, जिसके अंदर बियर्स होते हैं कोन,
जो कोन होते हैं वह मेल और फीमेल कोन बहुत ही सुंदर दिखते हैं, एकदम ब्यूटीफुल, डेकोरेशन में भी काम में आते हैं। वह कोन लाइक स्ट्रक्चर को इसके मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। जो मेल गैमेट होता है माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वह पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है, और फीमेल जो होता है वो मेगास्पोरेंजिया के अंदर एक स्ट्रोबिलाई कोन का स्ट्रक्चर बनाता है, उसके अंदर ओव्यूल्स को प्रोड्यूस करता है। और जब मेगास्पोरेंजिया से इसका पोलन ग्रेन आके मिलता है तो वहाँ पर आर्किगोनिया और दोनों मिलकर बियर्स करते हैं और वहाँ पर रिप्रोडक्शंस होता है। और इस तरह से मल्टी सेलुलर फीमेल जो गैमेटोफाइट होता है वह डिटेंट होता है मेगास्पोरेंजिया के अंदर। तो इस तरह से जिम्नोस्पर्म में हायर टाइप का सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस प्रोड्यूस होता है जो कोन स्ट्रोबिलाइज स्ट्रक्चर्स के अंदर फॉर्म होता है। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं टेरिडोफाइट की तरह अनलाइक होते हैं, मीन्स ये जो होते हैं इसके अंदर लोअर टाइप का रिप्रोडक्शंस नहीं होता है, ये अपनी फ्री लिविंग को एक्सिस्टेंस करते हैं। इनमें गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट्स दोनों ही प्रोसेस पाए जाते हैं। जब जर्मिनेट होता है सीड से स्पोरोफाइट, और जब मेच्योर हो जाते हैं मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया, तो इसके अंदर गैमेटोफिटिक स्टेज जो होती है वह डेवलप होती है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो इस तरह से जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वह हायर प्लांट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं, जिसके बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए। मैंने यहाँ पे बताया था लार्ज ट्री, जो कॉनिफर्स ट्रीज़ वगैरह जो होते हैं जो मोस्टली हिली रीजन्स में पाए जाते हैं, टोलेस ट्री, साइकस और पाइनस। यहाँ पे देखिए साइकस और पाइनस, जिसके अंदर मैंने साइकस के लिए बताया था अनब्रांच्ड और पाइनस ब्रांच्ड स्टेम। और ये तीनों के तीनों किसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं स्टूडेंट्स? ये तीनों अपने इंक्लूड हो रहे हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर। तो इस तरह से आज आपका जिम्नोस्पर्म प्लांट का टॉपिक भी फिनिश हो गया है। तो प्रिपेयर योर नोट्स ऑफ द गिवन चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स।